Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. Hope you're doing well. So this is the next video in the Best of CAT LRDA practice series. So today we are actually going to take a look at a more recent problem that is from CAT 2022. Right? This is again an easy problem, I would say. Right? So recent years में भी recent days में भी आपके easy problems आए हुए हैं. You just have to figure them out, right? So this is again an example of the same thing. ठीक है? So let's start with the set for today. Before moving on, we have an important announcement as always. If you're a CAT 24 aspirant and is looking for a CAT 24 comprehensive program, so you can definitely check out our Chanakya batch, a very comprehensive program including everything quant, LRDA and verbal. ठीक है, details तुम्हें description में मिल जाएंगे. You can check out the links also. आप check out कर सकते हो, courses में क्या चल रहा है वो भी check out कर सकते हो. ठीक है. Let's start with the set for today, and as always we'll move on with the standard practice. First, you pause this video, try the set yourself, and then proceed on with the rest of the solution. Right, so let's continue, and I hope you got this one definitely correct. चलो start करते हैं इसको discuss करना. Adhara, Beeti, Chaya, Dhanavi, Esther and Fatima. So good names A, B, C, D, E and F are the interviewers in a process that awards funding for new initiatives. ठीक है, शार्क टैंक जैसा. Every interviewer individually interviews each of the candidates individually and awards a token only if she recommends funding. Right, so basically वो tokens दे रहे हैं if they actually recommend funding. A token has a face value of 2, 3, 5, 7, 11 and 13. तो किसका क्या है ये मुझे नहीं पता, बट ओवरऑल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 आपके इंटरव्यूअर्स है. दे आर गिविंग टोकन्स 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13. तो क्या एक पर्टिकुलर पर्सन मल्टीपल टोकन्स दे सकता है, ये अभी फिलहाल क्लियर नहीं है. लेट्स रीड फर्दर. Each interviewer awards tokens of a single face value only. Okay, now that is now clarified. तो ये तो बहुत easy हो गया. ठीक है, इसमें हर एक इंटरव्यूअर एक ही फेस वैल्यू का टोकन देगा. ठीक है, इसका मतलब अगर कोई पर्सन है फॉर एग्जांपल अदारा, अब वो मल्टीपल कॉम्बिनेशन नहीं बना सकती. ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, आपका एक ही को देना पड़ेगा. या तो वो पूरा 2 देगी, या तो पूरा ही 3 देगी, या तो पूरा ही 5 देगी, या तो पूरा 7 देगी, या 11 या 13. कोई एक नंबर उसके पास होगा. ठीक है, दैट हैज टू बी क्लियर. ठीक है, once all 6 interviews are over for a candidate, the candidate receives a funding that is 1000 times the product of the face values of all the tokens. Example भी दिया हुआ है. For example, if a candidate has tokens with face values 2, 5 and 7, then they get a funding of 1000 times of the face values. क्लियर है ना. अगर 257 किसी से मिला है, राइट, 257 अगर तुम्हें मिला हुआ है तो क्या है, उसका 1000 टाइम्स करना पड़ेगा उसके प्रोडक्ट का. 2 into 5 into 7, that would be 70. So 70 into 1000, 70,000 would be the total funding they would receive. Then we have P, Q, R, S and T. Pragnya, Khaira, Rashida, Smera and Tantra were 5 candidates who received funding. The funds they received in descending order were. So बस अभी आपको ये भी अगेन नहीं पता है कि किसको क्या मिला है. सिर्फ इन 5 लोग को ये वैल्यूज मिली है. डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है 390,000, 210,000, 165,000, 77,000 and 66,000, obviously in some order. क्लियर है. सो ये अपने को क्लैरिटी होनी चाहिए. सो अब ओवरऑल सेट में अगर नोटिस करो तो चीजें बहुत सिंपल हो गई. ए बी सी डी ई एफ 6 लोग हैं, उनके पास ये 6 नंबर है. राइट, 6 लोग 6 नंबर, हर एक पर्सन के पास एक ही नंबर होने वाला है. मल्टीपल लोग के पास तो नहीं हो सकता. ठीक है, एंड देन वी हैव दीज 5 पीपल और इनको क्या नंबर मिले हैं, ये आपका टोटल फंडिंग रिसीव्ड है. अब इसमें एक चीज अच्छी ये है, एक्चुअली में नोटिस करोगे जैसे कि 390,000 है, अभी इसको मोर क्लियरली करेंगे एक टेबल बना के. पर जैसे ही 390,000 है, इसमें मुझे पता है कि 1000 टाइम्स तो इसमें आकर रखा ही है. इसमें जो भी हमारा फेस वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन रहा होगा उसमें फाइनली 1000 मल्टीप्लाई हुआ होगा. तो इसको अगर मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 390. तो अब मेरा टास्क बस इतना सा रह जाएगा कि मुझे पहले ये नोटिस करना पड़ेगा कि 390 इनमें से कौन सी वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन है. तो वो बहुत डिफिकल्ट नहीं होने वाला है. याद रखना, जैसे कि 390 है, कभी भी किसी भी नंबर में अगर हमारा नंबर 0 से एंड हो रहा होगा तो हम एक चीज तो गारंटी है ना कि वो नंबर हमारा 2 and 5 दैट इज 10 का मल्टीपल होगा. तो उस नंबर में 2 and 5 डेफिनेटली आया होगा. जैसे कि ये 390 है तो इसमें मुझे पता है कि 2 into 5 तो हो ही रखा होगा.
10 आ रखा होगा, तो इसका 0 उस 10 से बन जाएगा, बचा तुम्हारा 39। अब इन नंबर्स में कौन से नंबर का मल्टीप्लीकेशन तुम्हारा 39 बनेगा? देयर विल बी ओनली वन पॉसिबिलिटी एंड दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट दिस सेट, कि हमारे पास क्या है, 39 है, सो दैट विल बी कंप्राइज्ड ऑफ 3 एंड 13, right? So using a similar logic you can actually go ahead and break down all the numbers and then we'll be using these conditions to figure out किसके पास कौन सा फेस वैल्यू का टोकन है और किसको कौन सा इसमें से अमाउंट मिला है. That has to be figured out in this particular set, right? So definitely one of the easier ones in CAT, right? A doable one. ऐसे सेट्स को कभी मिस आउट अपने को नहीं करने चाहिए. नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस कंप्लीटली. सो पहला काम क्या करते हैं, हम ना सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट करने के लिए टेबल बना लेते हैं. ठीक, अब वो टेबल कैसे बनाएंगे? टेबल बनाने से एक्चुअली वो ईजी हो जाएगा आपके लिए. टेबल कैसे बनाएंगे? पहले तो सारे अमाउंट्स लिख लेते हैं, ठीक है, एक ही जगह ब्रेक डाउन कर लेंगे. तो आई विल राइट द अमाउंट्स विदाउट दीज 1000 3 zeros, बिकॉज 1000 तो वो लास्ट के 3 जीरो सब में ही कंट्रीब्यूट कर रहा होगा. सो हम सिंपली क्या करते हैं, फर्स्ट 3 डिजिट्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड. सो 390, then 210, 210, then 165, then 77, and then 66, राइट. और हम क्या कर लेते हैं, एक और काम, बिकॉज मुझे ये डिसाइड तो करना ही है कि 2 3 5 7 11 13 ये 6 लोगों के पास वो जो 6 नंबर्स हैं इसके पास क्या है. तो हम एक काम करते हैं, पहले ये लिख लेते हैं लाइन से, ठीक है, 2 3 5 7 11 एंड 13. ठीक है, ये कर लिया हमने. अब इसके बाद पहला हमारा काम क्या होना चाहिए, विदाउट रीडिंग दिस कंडीशंस पहले नंबर्स को ब्रेक कर लो. ठीक है, जैसे यहाँ पे ये पता है कि 390 किससे बनने वाला है, अभी हमने जस्ट फिगर आउट करा. तो उन कॉलम्स में उन करस्पॉन्डिंग वैल्यूज के साथ क्या कर देंगे, जो भी वैल्यू यूज होने वाली है उसमें एक टिक डाल देंगे, राइट. जो वैल्यू यूज नहीं होने वाली है उसमें क्या कर दो, आप एक क्रॉस डाल दो. ठीक है, सिंपल रख सकते हैं. तो 390 में हमारा 2 and 5 तो डेफिनेटली आने वाला है, सो 2 आएगा, 5 आएगा, 10 बना देगा 0, और 39 है तो 3 into 13, तो 3 भी आएगा, 13 भी आएगा, मतलब 7 and 11 विल नॉट बी इंक्लूडेड वाइल फॉर्मिंग दिस 390, राइट. सो ये पूरा टिक क्रॉस का गेम हम कंटिन्यू करके वी कैन गो टिल दिस 66. चलो फिर कंटिन्यू करते हैं. 210 में 2 5 होगा, नंबर 0 से एंड हो रहा है, तो 2 होगा, 5 होगा, 21 is 3 into 7, सो 3 होगा, और हमारे पास क्या होगा, 7 होगा. ठीक है, देन बाकी दोनों वैल्यूज पे हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं. देन 165 वुड बी 5 into 33, 5 तो होगा ही होगा, और कोई 5 का मल्टीपल तो है नहीं, सो 5 होगा, 33 बचेगा, 33 भी बनाने का एक ही तरीका है, दैट इज 3 into 11, सो 3 होगा और हमारा 11 होगा. ऑल द रिमेनिंग वैल्यूज विल बी क्रॉस्ड आउट. देन 77 इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, 7 into 11, सो इन दोनों में टिक आ जाएगा, और बाकी सारी वैल्यूज में क्या आ जाएगा, तुम्हारा क्रॉस आ जाएगा. देन 66 बिकॉज इवन नंबर है तो उसमें 2 का होना गारंटी है, तो 2 होगा, 2 के साथ 33 और होगा, 33 भी बनने का एक ही तरीका है, दैट इज 3 and 11. तो इसमें क्या क्या होगा, तुम्हारे पास 2 होगा, 3 होगा, और तुम्हारे पास 11 होगा, दैट विल गिव यू 66. सो बाकी वैल्यूज को हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस आउट. ये हो गया हमारा इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का पहला पार्ट रिजॉल्व. ठीक है, कि कौन सा नंबर किन कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर से बना हुआ है. अब हम स्टार्ट करेंगे ये फिगर आउट करना कि किसके पास कौन सा कॉम्बिनेशन है, किसने किसको क्या टोकन दिया है. नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग ऑल द कंडीशन. 3 ही कंडीशन है. फातिमा, फर्स्ट कंडीशन, फातिमा अवॉर्डेड टोकन्स टू एवरीवन एक्सेप्ट काहिरा. अब ABCDEF हम यहां लिखने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हीं के पास तो टोकन्स है, और इधर हम क्या लिखने वाले हैं, PQRS एंड T. सो फातिमा अवॉर्डेड टोकन्स टू एवरीवन एक्सेप्ट काहिरा. अब फातिमा एक ऐसा पर्सन होगा जो 5 में से 4 लोग में टिक दे रही होगी, मतलब उसने दिया होगा, और एक जगह क्रॉस होगा. देखो बहुत नोटिस करो, बहुत सिंपल है आपका. इन किस कॉलम में तुम्हारे पास 4 बार टिक है, 4 लोग को वो टोकन देगी, एक को नहीं देगी. सो 2 में आपको 3 लोग को मिला है, 3 में आपके 4 लोग को मिला है, एक को नहीं मिला है, एंड दैट इज नॉट हैपनिंग एनीवेयर एल्स, एंड दैट मेक्स दिस अगेन प्रॉब्लम. आई वुड अगेन से दैट इज इजी, बिकॉज इसमें प्रॉब्लम ही नहीं है, सीधा सीधा दिख रहा है कि ये 3 वाला टोकन होगा किसके पास, फातिमा के पास. तो दिस हैज टू बी फातिमा.
फातिमा अवॉर्डेड टोकन्स टू एवरीवन एक्सेप्ट काहिरा, तो काहिरा को नहीं दे रही है, ये भी पता है. सो दिस 77 वुड बी द टोटल व्हाट टोटल फंडिंग रिसीव बाय काहिरा. ठीक है, वो पार्ट फिक्स हो गया. वाइल Adhara A awarded tokens to no one except Pragnya. Right? So A would be giving to no one except Pragnya. मतलब इनमें से रिमेनिंग में से कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके कॉलम में तुम्हारे 4 बार क्रॉस आएंगे और 1 बार टिक आएगा, एंड दैट टिक विल एक्चुअली बिलोंग टू व्हाट P प्रज्ञा. सो कहां पे है तुम्हारे पास 4 बार क्रॉस, तो नोटिस करोगे तुम्हारे पास 4 बार क्रॉस कहां है, इस 13 वाले में. सो दिस बिलोंग्स टू A. ठीक है, अधारा. नाउ दैट 13 बिलोंग्स टू ए. अधारा गेव टू नो वन एक्सेप्ट प्रज्ञा. तो जिसको इसने दिया है ये वाला टिक, ये किसको बिलोंग करता है, तुम्हारा पी को बिलोंग करता है. राइट, क्लियर है यहां तक. दैट वाज द फर्स्ट स्टेटमेंट, पूरा यूनिक बना. नाउ द सेकेंड पॉइंट, राशिदा रिसीव द हाइएस्ट नंबर ऑफ टोकन्स दैट एनीवन रिसीव्ड बट शी डिड नॉट रिसीव वन फ्रॉम एस्थर. सबसे पहले नोटिस करते हैं इन 5 लोगों को कितने कितने टोकन्स मिले हैं. राइट, राशिदा रिसीव द हाईएस्ट नंबर ऑफ टोकन्स. तो पहले इन सब में देखो तो इसको कितना मिला, 4 मिला. इसमें कितना है इस रो में, अगेन 4 ही है, या 4 से ऊपर है कुछ. इसमें कितना है 3. राइट, लिख लेते चलो. इसमें कितना है 3, इसमें कितना है तुम्हारा 2, इसमें कितना है तुम्हारा 3. तो हाईएस्ट नंबर ऑफ टोकन्स अवॉर्डेड इज 4. राइट नाउ, तो ये कंडीशन जो बोलता है राशिदा रिसीव द हाईएस्ट नंबर ऑफ टोकन्स, इसमें ये नहीं बोला था यूनिक हाईएस्ट, मतलब अकेले उसी का हाईएस्ट है, ऐसा नहीं बोला है. तो विल नॉट अज्यूम दैट राशिदा रिसीव द हाईएस्ट नंबर ऑफ टोकन्स दैट एनीवन रिसीव. तो किसी को भी जो हाईएस्ट मिला है उसमें राशिदा को मिला है. राइट, राशिदा को मैक्सिमम के बराबर मिला हुआ है. राइट, तो इन दोनों का ही हमारा मैक्सिमम 4 है, इनमें से ये P है, तो ऑब्वियसली दिस वुड बिलोंग टू R. Rashida received the highest number of tokens that anyone received, but she did not receive one from Esther. तो राशिदा को इन दोनों से नहीं मिला है, one of these should be Esther. ये तो A है, that means this should be Esther. So that also takes care of our second statement. Right? Very simple statement I would say. ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको इस पर्टिकुलर सिनेरियो में. Now the last and the final statement, बीती awarded a token to Smera. Now बीती आपको नहीं पता यहां पे कहां है. राइट, बीती इसमें तीनों में कहीं हो सकती है. बीती awarded a token to Smera. Smera भी तुम्हें नहीं पता, either it is belonging to 165 or belongs to 66. देखते हैं. बीती awarded a token to Smera but not to Kahira. अब इसकी पॉसिबिलिटीज चेक करी जाए. देखो, मान लो तुम्हारा S यहां पे, सपोज यहां पे S है, तो बीती अब बीती भी आपकी 2 पे भी, 5 पे भी और 7 पे हो सकती है. तो बीती अवॉर्डेड अ टोकन टू स्मेरा बट नॉट टू काहिरा. तो इसके हिसाब से स्मेरा को मिला, काहिरा को नहीं मिला, तो स्मेरा में टिक होना चाहिए, काहिरा में क्रॉस होना चाहिए. तो ये तो बीती नहीं हो सकती. क्या ये हो सकता? नहीं, यहां तो F है. यहां पे नोटिस करो तो S को मिलेगा और Q को नहीं मिलेगा. सो दैट इज डेफिनेटली पॉसिबली, मतलब अगर मैं यहां पे S को रखता हूं तो S को अगर मैं यहां रखता हूं तो BT वुड बी एट 5. दैट इज अ पॉसिबिलिटी. 7 पे फिर वो नहीं हो सकती, बिकॉज S को मिलना चाहिए, इसको काहिरा को नहीं मिलना चाहिए, तो ये उल्टा हो जाएगा. तो अगर Q तुमने यहां रखा तो B तुम्हारा यहां पे आ जाएगा. दैट इज वन पॉसिबिलिटी. अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी भी चेक कर ले. अगर मैंने मान लो S को यहां रखा, ठीक है, सपोज मैंने S को यहां रखा, तो अब BT कहां आएगी? तो S को मिलना चाहिए और Q को नहीं मिलना चाहिए. सो BT विल कम एट दिस 2 ऑल्सो. ये भी आ सकती है, बिकॉज S को मिलेगा और Q को नहीं मिलेगा. सो BT यहां पे हो सकती है. देन यहां पे क्रॉस है, यहां पे क्रॉस है, तो वो पॉसिबिलिटी तो नहीं है. 7 पे भी यहां क्रॉस है, यहां पे टिक है, तो पॉसिबिलिटी नहीं है. मतलब इसका ये बहुत क्लियर मीनिंग बन रहा है कि अगर तुमने यहां पे S को रखा, राइट, तो BT वुड बी एट दिस प्लेस. अगर तुमने S को यहां रखा तो BT वुड बी एट दिस प्लेस. क्लियर है? सो हम चाहे तो 2 पॉसिबल डायग्राम बना सकते हैं, बट देखते हैं अभी दूसरे पॉसिबल डायग्राम की जरूरत है कि नहीं, या हो सकता है इसी में हम पॉसिबिलिटीज लिख ले जाएं. ठीक है, अभी फिलहाल 2 पॉसिबिलिटीज अपने को दिख रही है क्लियर कट. अच्छा, लास्ट पॉइंट अगर देखो, वाइल धनावी अवॉर्डेड अ टोकन टू काहिरा बट नॉट टू स्मेरा. अच्छा, फिर से स्मेरा के ऊपर कंडीशन आ गया, स्मेरा और काहिरा के ऊपर. तो धनावी हैज टू बी अ पर्सन हु अवॉर्डेड अ टोकन टू काहिरा बट नॉट स्मेरा. नाउ ये थोड़ा ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट तुम्हें दिखेगा. तो जो धानावी पर्सन है
उसने काहिरा को दिया है बट स्मेरा को नहीं दिया है। नोटिस करो काहिरा को सिर्फ 2 ही टोकन्स मिले हैं, उसमें से एक टोकन तुम्हारा ई ने दिया है। सो ये जो दूसरा टोकन हुआ अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट धानावी अवॉर्डेड अ टोकन टू काहिरा, तो मतलब मैं ये गारंटी कर सकता हूं कि दिस हैज टू बी धानावी। तो वो दानावी हो गई, दानावी अवॉर्डेड अ टोकन टू स्मेरा बट नॉट टू काहिरा। तो ये तो वैसे भी ट्रू हो जाएगा बिकॉज धानावी ने क्यू को दिया है, इन्हीं दोनों में से कहीं ना कहीं ऐसा है, तो वैसे भी आपका क्रॉस आएगा। मतलब बस इतना हुआ कि इस लास्ट वाले पार्ट से डी आपका 7 पे फिक्स हो गया। एंड नोटिस करो इससे जो पहला वाला पार्ट था बीटी अवॉर्डेड टोकन टू स्मेरा बट नॉट टू काहिरा, उसमें हमने बोला ही है कि वो 2 पॉसिबिलिटीज है। सो इसके बाद तुम्हारे पास कोई कंडीशन है नहीं। नाउ आई कैन एक्चुअली से कि विल हैव 2 पॉसिबिलिटीज। अब पॉसिबिलिटीज कैसे लिखी जाए, देखो सिंपल, अगर मैंने एस यहां पे लिखा, राइट अगर मैंने एस यहां पे लिखा तो बीटी वुड बी एट दिस प्लेस। ठीक है, तो इसका मतलब अगर यहां मतलब दूसरी पॉसिबिलिटी इसी डायग्राम में अगर बनाना चाहोगे तो तुम्हारे पास यहां पे सी बचा हुआ है और यहां पे टी बचा हुआ है, तो ऐसे लिख लो एस टी और टी के साथ यहां पे सी। ठीक है, बस इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी दूसरी जगह लिख लो, यहां पे टी यहां पे एस और इसका भी उल्टा यहां पे सी और यहां पे पी। ठीक है, दूसरा डायग्राम बनाने की जरूरत ऐसा है नहीं, बस क्लियर कट ये हो गया कि अगर यहां पे एस है और यहां पे टी तो बीटी वुड बी एट दिस एंड सी वुड बी एट दिस। द अदर पॉसिबिलिटी, अगर तुम्हारा एस यहां पे है तो यहां टी आ जाएगा और अगर यहां एस है तो बीटी वुड बी एट दिस। हमेशा फर्स्ट 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 ऐसे देखेंगे और सेकंड 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 देखेंगे। एंड नाउ दिस डायग्राम, दिस सेट इज परफेक्टली कंप्लीट। राइट, समझ में आया? Now we can actually go ahead to the problems. How many tokens did Kahira receive? तो Kahira के number of tokens would be unique, that is 2. बता सकते हैं, this is 2. Second, who among the following definitely received a token from Biti but not Dharavi? Biti से मिला है but Dharavi से नहीं मिला है, ये इसकी गारंटी करनी है अपने को। तो Biti एंड Dharavi अगर आप नोटिस करो, बीती को पॉसिबिलिटीज हम दे सकते हैं, बट ऐसा कौन सा सिनेरियो है जहां पे आप डेफिनेटली बोल सकते हो कि बीती ने दिया है बट धारावी ने नहीं दिया है उस पर्टिकुलर पर्सन को? तो ये नोटिस करो, द फर्स्ट केस इटसेल्फ, इस केस में तुम्हारा बी चाहे जहां पे हो, चाहे यहां पे हो यहां पे हो, दोनों में टिक डेफिनेटली है, तो बीती ने दिया है और डी को नहीं दिया है। दिस हैपेंड फॉर पी प्रज्ञा, दैट मींस सी इज द करेक्ट आंसर। द थर्ड प्रॉब्लम, हाउ मेनी टोकन्स डिड छाया अवार्ड? तो छाया का टोटल अवार्ड्स, तो छाया तो यहाँ है या तो यहाँ है, चेक कर लो। तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, रिस्पेक्टिव की कहा है, हेंस द आंसर शुड बी 3 अगेन। हाउ मेनी टोकन्स डिड स्मेरा रिसीव? स्मेरा अगेन इज बोथ पॉसिबल, राइट, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, बट इररेस्पेक्टिव ऑफ द केस, दोनों केस में टोटल नंबर ऑफ टोकन्स इज एक्चुअली 3। The fifth problem, which of the following could be the amount of funding that Tantra received? Tantra को 165 भी मिल सकता है और 66 भी मिल सकता है। And hence the answer to the fifth problem is both A and B, that is C option. राइट, सो कंडीशनैलिटीज का बेसिकली ये प्रॉब्लम हुआ। टॉपिक अगर हम क्लासीफाई करें इसका हम अंडर कंडीशनैलिटीज। ठीक है, क्लास में हमने बहुत सारे इसके सेट्स कर रखे हैं, ये तो फिर भी बहुत सिंपल सा है। राइट, सो दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट डोएबल वंस अगेन। राइट, एक क्लास में मैंने और भी कराया था। सो इस पर्टिकुलर सीरीज में मिक्स रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम सारे ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स करेंगे, अल्टीमेटली हम वो सारे सेट्स करेंगे जो करने लायक होते हैं। कभी कभी बहुत डिफिकल्ट भी हम करते हैं सो दैट अपना ब्रेन का डेवलपमेंट भी हो। ठीक है, साथ ही साथ सारे इजी हम नहीं करना चाहेंगे। विल कवर मिक्स ऑफ ऑल द काइंड्स दैट कैट हैज गिवन टिल नाउ। Right, so I hope everyone has understood this. If you have any doubts, you can just put that in the comments. Thank you.